Good morning and Jai Hind everyone. Today we are here on the chapter comparing quantities, and this chapter comparing quantity has so many things to do. Like in this chapter we will study about ratio, in this chapter we will study about percentage, and also we will solve it about simple interest, principal, finding the rate. You have to find out, calculate compound interest as well. So there are so many different topics which you will study together in this chapter. And remember, this chapter has so many applications in our daily life. Like when you talk about percentage, if you talk about the concept percentage, this concept is used very often in your life. For example, right now your exams are going to be conducted as a half yearly examination, and you are knowing you will get percentage in your report card. First thing. Second, when you are giving an examination, your 75% of attendance is compulsory. So I am speaking the word 75 percentage. That means attendance is compulsory, that आपने इतनी classes attend की होगी तभी आप exam के लिए eligible होते हो. So that is again a concept which you are using here. Now, third thing, you are knowing that so many festivals are coming after this month of September. We are getting Deepavali, we are getting Navratri, or you can call it Dashera. So these are the festivals which are coming, and you are knowing just on the count of these festivals, you have so many discount offers on so many markets. You can call it malls or so many websites, like you can call it online, Flipkart, Amazon, ठीक है, Myntra. So you will have so much discount into it. So what you do, you use these concepts: 75% off, 70% off, 50% off, 20% off. So these are the concept. These are the places where you use the concept of percentage many of the times, है ना? So remember, this percentage concept is used very often. Then you talk about where we use compound interest and simple interest. I think all of us knows that we all have suffered a lot due to this pandemic COVID. ठीक है, हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं इसने हिट किया. जिनके बैंक्स में या जिनके पापा के बैंक्स में, आई एम टेलिंग अबाउट, बिकॉज अभी आप लोगों के बैंक अकाउंट बहुत कम होंगे. ठीक है, सो आप जिनके फैमिली के मेंबर्स के अकाउंट में पैसे रहे होंगे, उन्होंने ये कोविड का टाइम बड़े इजीली निकाला होगा. ठीक है, क्योंकि जनरली सभी के पेरेंट्स घर पे थे, कोई किसी की जॉब नहीं थी. जनरली कुछ लोग थे जिनको जॉब में डिक्रीमेंट हुआ था या जिनको पूरी सैलरी नहीं मिल रही थी. देयर वर सो मेनी केसेस, सो उन समय पर जिनकी भी सेविंग थी, जनरली वही काम आ रही थी, है ना? तो ये सेविंग कहाँ हम रखते हैं? हम रखते हैं बैंक में. और बैंक जो होता है वो एसआई एंड सीआई, इन दोनों के रिस्पेक्ट में काम करता है. एसआई एंड सीआई. एसआई मींस होता है सिंपल इंटरेस्ट एंड सीआई मींस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट. जनरली हम लोन लेते हैं या जब हम मनी डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक जो होता है वो हमसे एक्स्ट्रा पैसे हायर करता है. ठीक है, वो एक्स्ट्रा पैसे जो होते हैं या तो हमें मिलते हैं या हमें देने पड़ते हैं. अब नाउ यू विल बी थिंकिंग, मैम बोल रही है मिलते भी हैं और देने भी पड़ते हैं. So there are two concepts. When you give your money to the bank for keeping it safely, for example, depositing money. ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपए हो चुके हैं, अब आप उसको बैंक में रखना चाहते हो, तो आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा बैंक में रखने से? तो you get some extra money from the bank. That money is known as interest. ठीक है, ये मनी आपको बैंक से मिलेगी एक्स्ट्रा जब आप अपने वो 1 लाख रुपीस बैंक से वापस लेंगे. ठीक है, then move on to आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ती है. देनी कब पड़ती है? Suppose you need money, you don't have money and you have to purchase something which is very urgent, or maybe that is any of the facility which you want to avail. For example, you want to buy a car, you want to buy a flat, you want to buy a laptop or something like that. So you want to take some money as a loan from the bank. So then why the bank will give you money? Like, okay, so the bank give you money for extra money. For getting extra money means, suppose अगर आपको 50,000 rupees बैंक से लेना है for purchasing a new laptop for just doing the online classes, so bank will give you 50,000 rupees, but bank will also charge some extra money from you. Like after 1 year when you will pay this money to bank, suppose you need to give 60,000.
but you took 50 only, but bank is taking 60,000 from you. It means this 10,000 which extra you are giving, that is interest again. Fine. So remember, sometimes you have to give extra money, sometimes you have to take extra money. So these are the two concepts, in the form of loan and on the form of depositing money. Now one more thing I want to tell you, जब जितना ज्यादा बड़ा बैंक होता है, जितना ज्यादा प्राइवेट बैंक होता है, remember they always give the money to you in CI form. ठीक है? And one more thing, I will explain it to you what is CI and SI actually in a detailed manner. But मैं आपको एक एग्जांपल बस बोलना चाहूंगी, ये जो कोविड के केसेस बढ़ रहे थे ना, that was not CI, so that was not SI, that was CI. Remember, that is why लोगों को एक दूसरे से अलग रहने के लिए कहा जा रहा था, ठीक है? बिकॉज जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीजेस होती हैं, जो एक दूसरे के रिलेशन में आने से, एक दूसरे के साथ में आने से फैलती हैं, वो बीमारियां सीआई के रेट में बढ़ती हैं, ठीक है? सीआई का मतलब होता है बहुत जल्दी हमें इंक्रीमेंट होना, बहुत जल्दी चीजें बढ़ते जाना। जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीजेस होती हैं वो सारी सीआई के रिस्पेक्ट में बढ़ती है, रिमेंबर दिस, ठीक है? सो हमारे जो कोविड केसेस थे वो बार बार बहुत जल्दी जल्दी क्यों बढ़ रहे थे? आज 200 है, कल सुन रहे थे आप 800 हो गए, ठीक है? आज आपने 800 सुना, कल सुना 1 लाख पहुंच चुका है दूसरे सिटी में। उसका रीजन था क्योंकि वो सीआई के रेट में बढ़ रहे, ठीक है? देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन डिटेल दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई एंड व्हाई बैंक विल गिव यू मनी फॉर सीआई नॉट इन एसआई, ठीक है? Now let's move on to another concept. ये तो हो गया concept जो हम daily life में use करते हैं, and one more concept which is very very important again, which you use it in your life, that is profit and loss. Profit, loss, discount, VAT, ये सारी चीजें जितनी अभी हमें दिख रही हैं, ये भी ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आप इसमें चैप्टर में पढ़ने वाले हो, एंड दीज कॉन्सेप्ट्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच यू स्टडी इन योर लाइफ. नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू वेयर दीज कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड. प्रॉफिट एंड लॉस तो आप शायद क्लास 4th से पढ़ रहे हो, एंड यू मस्ट बी नोइंग इट अबाउट प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस, है ना? तो जनरली प्रॉफिट एंड लॉस का यूज हम नहीं करते हैं, बट हमारे पेरेंट्स जो जॉब में है या मान लीजिए अगर बिजनेस में है, तो जनरली वो इन कॉन्सेप्ट का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर पर्सन है वो अगर किसी बिजनेस फील्ड में है तो वो तभी सरवाइव कर सकता है जब तक उसको अपने मार्केट से या अपने बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा हो, है ना? अगर उसको लॉस हो रहा होगा तो उसका बिजनेस मतलब सही नहीं चल रहा है. अभी कोविड में ऐसे बहुत सारे बिजनेस थे जिनको लॉस हुआ, है ना? बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जो टेलीकॉम कंपनी थी, आपको याद होगा आपके फ्रेंड शशांक ने एक वीडियो शो किया था, उसमें आपने बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज देखी थी, ठीक है? बिगिनिंग में वो सारी टेलीकॉम कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट के साथ चलती थी, क्योंकि इंडिया में हर एक कम्युनिटी अलग अलग सिम यूज करती थी, ठीक है? बट धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे जियो आया उसने अपने अट्रैक्टिव प्लान्स के चलते क्या किया, सबको स्विच ओवर कर दिया. स्विच ओवर करने के बाद जो लोग अदर टेलीकॉम कंपनीज यूज कर रहे थे वो भी क्या करने लगे, धीरे धीरे करके स्विच करने लगे और किसमें चले गए, जियो में. तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, जितनी अदर टेलीकॉम कंपनी थी लाइक यूनिनॉर, डोकोमो एंड देयर आर सम मोर जो कि पहले चलती थी, ठीक है, वो सारी बंद होने लगी. और बंद होने के बाद कुछ लोगों ने तो मिक्स मैच कर दिया. मिक्स मैच करने का मतलब ये होता है कि वोडाफोन आइडिया से मिल गई, ठीक है, और दोनों ने टाई अप कर लिया, ठीक है? एयरटेल सेपरेट हो गई, जियो सेपरेट हो गई. इसके अलावा अभी आप मार्केट में शायद मुझे लगता है बहुत कम ऐसी कंपनी होंगी जो आप देख भी रहे होंगे. हमारे पास गिनती के 3-4 सिम अब रह गई हैं. Earlier we used to have so many sims, you know, but right now we have very few because they were facing the loss in that company. So that is why they have reduced their whatever they were thinking कि we will produce this, we will do this production, but they have totally minimized it. After minimizing, they have stopped it. ठीक है? Because of loss only. So remember, profit and loss generally आपको मार्केट में देखने के लिए मिलता है. Now what is about discount? डिस्काउंट के लिए तो आई थिंक मुझे लगता है आपकी क्लास में सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से अवेयर होंगे, बिकॉज
सभी की मम्मी, सभी के पापा या खुद आप लोग भी शॉपिंग करते हो, एंड जनरली हम लोग उस शॉप से ज्यादा शॉपिंग करने की कोशिश करते हैं जहां पर हमें डिस्काउंट ऑफर ज्यादा होता है। ठीक है, हम बिग बाजार में तब जाने की कोशिश करते हैं जब वहां पर ऑफर चल रहा होता है या डिस्काउंट चल रहा होता है ना। ये जनरली सभी की हैबिट होती है ना, इट्स अ ह्यूमन हैबिट। वी विजिट दैट शॉप वेयर वी हैव मच डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, लाइक सपोज cost of any person or cost of any article is suppose 7,000 rupees and right now there is a discount offer, ठीक है, और आपको 50% ऑफर की सेल चल रही है। Can you tell me how much price you will give for this price? 7,000, 3,000, absolutely। तो सोचो अब आप ये सामान जो है आपको वो 3,500 में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपको 50% डिस्काउंट दे रही है आपकी मॉल या मान लीजिए जो भी साइट है जहां से आप खरीद रहे हो, whatever website where you are purchasing from. So remember, you always have this discount concept also used in your life. Now what about VAT? Anyone knows about it? What is VAT? This term, have you ever heard it? What is VAT? हाँ, please speak बेटा। Value added tax. Very good. Thank you very much, beta. There is a value added tax and there is an income tax. You know, there are two type of taxes, VAT and income tax. ठीक है? So आप income tax के बारे में कितने लोगों को पता है कि income tax क्या होता है बेटा? I think सभी के parents fail करते होंगे. What is income tax? Okay. Okay, 30% of the income. Anyone else who would like to elaborate what is VAT? There are two type of taxes. I want to know what is tax actually. Okay, let me tell you. You know what is tax actually? Tax means होता है ये मनी जो होती है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाती है। ठीक है, आप सोचते हो कि अब गवर्नमेंट पैसा लेती क्यों है? गवर्नमेंट पैसा लेती है आपसे ताकि वो कुछ फैसिलिटीज आपको दे पाए। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब कोविड आया, मैं बार बार एग्जाम्पल कोविड का इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसी रिसेंट चीज है जो आपने हाल ही में फेस की है। ठीक है, तो इसलिए आई एम रिलेटिंग ऑल द एग्जाम्पल विद दिस ओनली। आपने देखा होगा जनरली जब हम सेकेंड वेव आई तो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए और डॉक्टर या लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए बहुत ज्यादा क्राइसिस में थे। ठीक है, और उस समय सारे लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे थे। नाउ व्हाट व्हाई डू यू थिंक दैट व्हाई दे वर ब्लेमिंग टू गवर्नमेंट? यू नो व्हाई? बिकॉज वी पे आवर टैक्स टू गवर्नमेंट। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी पे द टैक्स टू गवर्नमेंट। एंड व्हाई वी पे द टैक्स टू गवर्नमेंट? जस्ट बिकॉज ऑफ getting these facilities in an emergency. ठीक है, like suppose we are facing an emergency of suppose hospital, or maybe we are using the public transport like bus or something like that, or maybe you are using the public facility like train, or maybe you are going through for example I'm talking about you are ill and you are going to the main hospital like that is government hospital. ठीक है, so these are the facilities which are given by government. So how they will give you these facilities? They give you these facilities just because you are paying the tax. That is why आपको ये सारी facilities मिलती रहती हैं, फ्री में मिलती हैं, जो लोग फ्री में अवेल करना चाहते हैं, है ना? So because हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो ये जो टैक्स होता है बेटा हम दो फॉर्म में देते हैं। जब हम इनकम पे मतलब हमें जो सैलरी मिल रही होती है जब उस पे टैक्स लगता है तो उसे बोला जाता है इनकम टैक्स। ठीक है, मतलब जो मनी आप अर्न कर रहे हो, जो मनी आप कहीं ना कहीं अर्न कर रहे होते हैं उस पे जब हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को तो उसे बोला जाता है इनकम टैक्स। ठीक है, ये हमारी सैलरी पर डिपेंड करता है, कितनी सैलरी हमारी है उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स देते हैं। जिसकी सैलरी ज्यादा होती है वो ज्यादा टैक्स देता है, जिसकी सैलरी कम होती है वो कम टैक्स देता है। नाउ देयर इज अनदर टैक्स VAT, that is value added tax, you know, VALUE, value ADDED, added tax. Now what is value added tax? Value added tax का मतलब होता है आप कोई भी सामान खरीदो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, ठीक है, कितना भी बड़ा सामान कितना भी छोटा सामान, हर सामान पे गवर्नमेंट का अपना टैक्स होता है। ठीक है, आप अगर एक चिप्स का पैकेट भी खरीदते हो ना
या आप कहीं मॉल से कोई सामान भी खरीदते हो, या आप गोल्ड खरीद रहे होते हो, या आप कपड़ा खरीद रहे होते हो, हर आर्टिकल पे जो कि दुकानदार के थ्रू सेल किया जाता है आपको, उस दुकानदार अगर वो आपको बिल देता है ना, अगर वो आपको बिल देता है दैट मीन्स उस पे टैक्स गवर्नमेंट को गया। इसलिए लोग कहते हैं कि हमेशा अपने परचेसिंग का बिल लेना चाहिए। ठीक है, क्यों बिल लेना चाहिए? ताकि जो दुकानदार है वो कहीं ना कहीं उस पैसे को मारे ना, मारे मतलब ये कि कहीं अपने जेब में ना रख ले, और पैसा तो आपसे उतना ही ले रहा है जितना टैक्स इंक्लूड करके, लेकिन वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहा होता है जब वो आपको बिल नहीं देता है। तो इसीलिए आप याद रखो, किसी भी परचेजिंग का, जो भी परचेजिंग आपने दुकान से की है, अगर आप उसका बिल देते हैं या बिल लेते हैं, दैट मीन्स आप गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्ट पे वैट दे रहे हैं, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। और हर सामान पे उसकी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग टैक्स ऐड होता है, इसे बोला जाता है वैल्यू एडेड टैक्स। नाउ आई होप आज मैंने जितने भी आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं, यू हैव अंडरस्टूड और नॉट।